This conference will now be recorded. First, go to your screen and then I told to start the recording. Otherwise, what is happening? Okay. Once you reach to the screen, then start recording every day. Remember. Okay. So, am I audible to everyone? Yes, sir. Hello. Yeah. So, very good morning to all the students. Today we will be discussing very important topic, right? Automatic email triggering. This email triggering is happening in most of the CRM applications very automatically, either from one department to another department of the same company. Either we need to fire some emails from one department to the other, one business to the other business. Like there are different concepts are available in the business. Like if one business or the one company is doing the business with another company, that scenario we called it as a B2B scenario. And when the company is doing business directly with the customer, that is known as B2C scenario, right? So in any of the scenario, if you take example, right, if a laptop manufacturing company is there, let's say Lenovo, right? Then that Lenovo company will not be manufacturing all the laptop parts there in the factory itself. Rather, rather they will serve certain item from certain different company. For example, processor they will get it from Intel, right? Or there are microchip, like there are several processor manufacturing companies are available, like Intel. Yeah, that is the one of the most popular company available on the globe, right? After Intel, there is microchip is also there, right? So likewise, there are several companies are available. So the laptop manufacturing company named Lenovo will purchase some part from Intel, will purchase some part from Nvidia. Nvidia is also like a graphics designer company. It is having the big name in the market, and with the graphics cards that you are having on your computers, that is mostly 99% are designed by Nvidia itself. So Lenovo can't focus on the all parts of manufacturing of the same in their house itself, right? Rather, they will be giving the order to different company like Intel, Nvidia, or other companies are available, right? So, uh, uh, so they will be doing this is what known as the business to business scenario, right? That is one scenario I told. Here also, once the part is delivered, what is the part number, है ना? आपको पता ही होगा that every processor will have some unique serial number. Like जैसे आपकी गाड़ी का एक chassis number होता है, right? सो भले ही आपने नंबर प्लेट चेंज कर दिया हो, बट उसका इंजन के ऊपर भी उसका चेसिस नंबर प्रिंट होता है। उस दो तीन जगह पे वो प्रिंट मीन्स वो उसके जो आयरन पार्ट है उसी में ऐसे इस तरह से किया होता है, उसको हम मिटा नहीं सकते, राइट? सो उसका वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो हर एक चीज के लिए कुछ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, उसको अलग अलग टेक्नोलॉजीज में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। लाइक आईसी के इसमें हम बोलेंगे आईसी नंबर, राइट? गाड़ी में बोलते हैं हम, या कार से बोलते हैं हम, दैट इज चेसिस नंबर। सो अलग अलग टेक्नोलॉजीज में उसको हम अलग अलग नंबर से जानते हैं, बट इट्स यूनिक। वो एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट का सेम नहीं होता है, राइट? किसी किसी में आपने देखा होगा एक बार कोड होता है, राइट? आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लोगे, इवन बिस्किट का पैकेट भी लोगे, तो उसके ऊपर भी एक बार कोड छपा हुआ होता है, वो उस प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है, राइट? सो वो पता चलता है वो यूनिक कोड से, भले ही किसी ने वो प्रोडक्ट के बारे में छेड़छाड़ी किया, राइट? बट वो बारकोड स्कैन करके उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के आता है, राइट? सो दैट डेटाबेस इज मेंटेन्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, जिसने उसको बनाया है, राइट? सो in several cases we need to trigger some automatic emails। हमें क्या करने पड़ते हैं? ऑटोमेटिक ईमेल्स ट्रिगर करने पड़ते हैं, राइट? नाउ व्हाई
This email triggering, either it may happen from one business to another business or one business to the customer also. Like like daily, on daily monthly basis you may get your credit card bills, or you may get the debit card bills, even you make the mobile recharge, ऑटोमेटिक आपको ईमेल आते होंगे कि आपका रिचार्ज पेंडिंग है या आपने रिचार्ज मारा है. Even you purchase anything on the online marketing, right? Like Amazon or Flipkart, if you do any kind of purchasing, in that situation also एक ऑटोमेटिक ईमेल आपको आता है, सिस्टम जनरेटेड. वो उसको कोई मैन्युअली नहीं करता है, राइट? इफ यू थिंक अबाउट अमेजोन कंपनी, डेली कितने प्रोडक्ट वो सेल करते होंगे डेली. तो उसको अगर वो डेली एक एक बंदा अगर देखते जाए कि ये ऑर्डर मिला है, उसको मेल करो, नो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, और इट्स हार्डली इम्पॉसिबल. So this is very very important scenario, or the email triggering is very very important thing. It has to be learned by everyone, right? To have the automation process in their organization, right? So in case of our Salesforce, the email triggering is done with the help of the four types. वो ईमेल ट्रिगरिंग हम चार जगह से उसको कर सकते हैं, राइट? एक तो होता है वर्क फ्लो, right? So second one is your that is known as process builder. थर्ड वन होता है लाइटनिंग फोर, और फोर्थ वन होता है प्रोग्रामेटिक अप्रोच, राइट? तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, वर्क फ्लो, राइट? सो वर्क फ्लो में भी हमें चार डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है. कितने कैटेगरीज है इन वर्क फ्लोज? देर आर फोर डिफरेंट थिंग्स with which we can deal with in the workflow, right? So first one is your this. Just a minute, let me share my screen, just give me a second. So can you see my screen, students? Yes, sir. Yes. So what we are going to discuss today, we will be discussing this workflow. Okay, mind well. इस workflow के चार different types है, right? चार different. Let me. Is it the text is visible to everyone, or shall I increase the text size? I guess it could be fine now, right? So there are four different categories are available for the workflows. The very first one is your email alert. We can send the email alert, automatic email alert. It can be like some time dependent also we can have, like after every 30 days, after every 50 days, we can schedule it. उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, हम सिस्टम में उसको शेड्यूल कर देंगे और उसको हम छोड़ देंगे. सिस्टम विल ऑटोमेटिकली फायर दोज ईमेल्स, राइट? जैसे किसी कस्टमर का बिल हमें शेयर करना है, राइट? तो वो बिल के फील्ड्स हम कुछ कोडिंग से या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी, जैसे हमने फार्मूला फील्ड देखे हैं, राइट? उस तरह से हम उसका बिल पे करेंगे, राइट? बिल बनाएंगे, ओके? और जैसे उसका बिल बनेगा, वो बिल सिस्टम में कौन से तो भी ऑब्जेक्ट में कहीं तो स्टोर रहेगा, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड द ईमेल ट्रिगरिंग, इट विल ऑटोमेटिकली उसके वैल्यूज उठाएगा सिस्टम में से, और वो बंदे को ईमेल ऑटोमेटिकली भेज देगा आफ्टर एवरी 30 डेज. तो उसका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, right?
After that, this is time dependent email. Even we can have immediate email also, we can fire. Like जैसे ही आपने अमेजोन पे कोई चीज परचेस की, आपको तुरंत एक ईमेल आ जाता है दैट आपने ये चीज परचेस की है, उसका उसका इतना इतना डिलीवरी टाइम है, या ये आपको ये डेट तक मिल जाएगा, राइट? सो दैट इज नोन एज इंस्टेंट ईमेल, राइट? सो ईमेल अलर्ट के भी दो कैटेगरीज है, टाइम डिपेंडेंट ईमेल एंड instant email. Third one is your field update. Third category is what? Field update. So in case of field update, for example, एक फील्ड के ऊपर दूसरी फील्ड डिपेंड कर रही है, तो उसको कैसे चेंज करना है, राइट? जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, जीएसटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट? सो मैंने अगर मैं बिल बनाते समय वो बंदा अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, सो अकॉर्डिंगली उसके नीचे उसकी बंदे ने सिलेक्ट किया बिस्किट का पैकेट, राइट? इफ ही वांटेड टू हैव अ पैकेट ऑफ अ बिस्किट, देन देन जैसे ही वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, उसके नीचे वाले फील्ड में ऑटोमेटिकली जीएसटी 5% है, 10% है, जो भी उन्होंने सिस्टम में फीड किया है, वो वैल्यू उसके ऑटोमेटिकली आएगी, लगेगी उसके ऊपर। सो सो दैट इज व्हाट नोन एज फील्ड अपडेट। ऑटोमेटिकली कोई फील्ड हम एक दूसरे के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, राइट? एक दूसरे से अपडेट हो रही है, राइट? सो दिस इज व्हाट फील्ड अपडेट। थर्ड वन इज योर task assignment. Task assignment, again, we have discussed in our demo session also, that how the Tata Sky or the service provider company task assign करती है। आज आजकल आप देखोगे, there are several service based companies are available in the market, and they are doing a tremendous good job, right? Even nowadays you might have heard that urban company is available, right? They are providing all the household services, right? Right from cleaning to all the services, they are cleaning, plumbing, wire, electric fitting, or anything that you can think that I need to hire some labor, that you could do it from urban companies. Just you need to log in and you need to select the service and check out the prices, and just you need to order it. As soon as you will place an order, तो वो क्या करेगा? अभी सपोज आपने ऑर्डर दिया दैट आई वांटेड टू हैव अ प्लम्बर, एंड यू विल बी पुटिंग द पिन कोड ऑफ योर एरिया. So as soon as you will put the pin code of your area, right, what it will do, उनके सिस्टम में भी एक प्लम्बर का एक अलग से ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट? प्लम्बर का एक अलग से डेटाबेस रहेगा। फिर वो देखेगा कि भाई आज के डेट में कौन प्लम्बर फ्री है और उसका टाइम स्लॉट क्या है, राइट? सो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जाएगी वहां पे कि भाई प्लम्बर आज आज ये जो मेरा फर्स्ट प्लम्बर है, ये डेट पे अवेलेबल है, तो उसको ये टास्क असाइन कर दो, तो उसको बोलते हैं टास्क असाइनमेंट। सो फिर दूसरा कस्टमर आता है, दूसरे कस्टमर को भी प्लम्बर ही चाहिए और वो सेम डेट और सेम टाइमिंग पे ही चाहिए, तो वो फिर से दूसरा कस्टमर जैसे प्लम्बर का ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर से वो ऑब्जेक्ट में जाएगा और चेक करेगा कि भाई प्लम्बर कौन ये टाइम स्लॉट में अवेलेबल है, राइट? ये डेट पे ये टाइम पे कौन अवेलेबल है, तो वो देखेगा कि प्लम्बर फर्स्ट स्लॉट में अवेलेबल, फर्स्ट प्लम्बर वो स्लॉट में अवेलेबल नहीं है, सो वो कौन से इसको ऑर्डर डाल देगा, सेकंड इसको ऑर्डर डाल देगा। और सारे ही प्लम्बर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सीधा एक मैसेज डाल देगा, नो प्लम्बर इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, प्लीज चेंज द टाइम स्लॉट. So this is what the task assignment is there. Very important in case of your CRM, right? And fourth one is your sending outbound messages. Which one is the fourth? Outbound messages, right? So this is mostly related to some uh, uh, to have a communication between two different applications. ये तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, वो सिर्फ सेल्सफोर्स के अंदर ही हमने डिस्कस किया। बट मुझे सेल्सफोर्स से एसएपी से कनेक्शन देना है, सेल्सफोर्स से ओरेकल के साथ कम्युनिकेशन करना है, राइट? ओरेकल इज आल्सो वन टाइप ऑफ डेटाबेस, सैप इज आल्सो वन टाइप ऑफ डेटाबेस, राइट? सो उसके बीच में कम्युनिकेशन करना है, राइट? So in that case, we need to use such a outbound messages. So we will not discuss the third category. You just need to be aware of this. So first of all, we will start with what? Email alerts. So now tell me, whenever you are writing some email,
व्हाट स्टेप्स यू आर डूइंग। आप जब भी किसी को ईमेल आप सेंड करना है तो आप नाउ टेल मी व्हाट स्टेप्स यू आर डूइंग, टेल मी, बोलो, ईमेल सेंडिंग के स्टेप्स बोलो, चलो। नॉर्मल, आप आपके गूगल में जाते हो या जीमेल में जाते हो, राइट? व्हाट आर दो स्टेप, बोलो। You will first write email, okay, right? What you will be doing, you will be writing some email, okay, right? email मतलब email का बॉडी आपको पता होना चाहिए कि मुझे उसको क्या कंटेंट भेजने हैं, राइट? आफ्टर दैट आपको क्या करना, क्या पता होना चाहिए कि किसको भेजना है, राइट? सेकेंड कैटेगरी क्या है फिर, टेल मी, to whom you need to send an email, right? It is known as recipients, right? After that, trigger, क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रिगर। ट्रिगर मीन्स आप जब तक सेंड बटन पे क्लिक नहीं करोगे, भले ही आपने ईमेल का ईमेल लिख के रखा हो, राइट, किसको भेजना है वो लिख के रखा हो, राइट, और आफ्टर दैट आपने वो सारा किया, बट यू नीड टू ट्रिगर द इवेंट। टेक्निकली हम जो सेंड बटन पे हम क्लिक करते हैं, टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग द इवेंट। तो हमारा इवेंट कब ट्रिगर हो रहा है, एज सुन एज वी क्लिक ऑन दैट सेंड बटन, our event will trigger. So all these three steps are available: writing the email, right, to have the content होने चाहिए, email writing means to have the content, recipients होना चाहिए, and then sending that or triggering the event. These all are the three steps generally involved in sending any emails. So now in case of our this system, in case of our यहाँ पे Salesforce में, to fire the event triggers or to trigger the emails, we need to follow these three steps again. इसके जैसे ही हम इसको ये तो ऊपर के जो है, that is generalized steps we have discussed. ये कौन से generalized steps, right? But now what steps we need to follow in case of your this email sending email alerts using workflow, we first need to have, as in first case what we need to have, email writing. तो वो email writing हम लिख के एक इसमें ईमेल टेम्पलेट करके एक टेबल होता है, जैसे हर एक चीज का डेटा जो है ना सेल्सफोर्स में, इट इज मेंटेन्ड इन some table or some in technical language in some object. So email template जो है, that is also one type of object, that is not a custom object. जैसे हमने patient, doctor या फिर hospital name, these all are custom objects as it is developed by us. But email template is a standard object that is developed by Salesforce. उसको उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट? सो ये Salesforce ने बनाया है. So first of all, what we need to do, we need to create one email template. क्या करना पड़ेगा हमें, एक ईमेल टेम्पलेट. ईमेल टेम्पलेट में हम सारा डाल देंगे कि उसकी बॉडी क्या रहेगी, सब्जेक्ट क्या रहेगा, मतलब एक ईमेल डाल दिया हमने, राइट? आफ्टर दैट वंस यू प्रिपेयर एन ईमेल टेम्पलेट, मतलब आपने एक ईमेल लिख के रखा है, ईमेल लिख के रखा है, वो सिस्टम में कहीं तो पड़ा है, तो कहां पे पड़ा है, ईमेल टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट में पड़ा है, राइट? अभी वो ईमेल टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, किसी को तो किसी रेसिपी किसको तो भेजना है, राइट? क्योंकि वो ईमेल टेम्पलेट है, उसमें सिर्फ लिखा है कि भाई आपका पेशेंट को अगर मेल है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, ये डेटा हमने उसमें डाल के रखा है, right? So we need to assign it to some recipients, right? So in order to assign it to some recipients, we need to create some action. उसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन, वर्कफ्लो एक्शन, और उसको बोलते हैं हम ईमेल अलर्ट्स. क्या बोलेंगे हम, ईमेल अलर्ट, ईमेल अलर्ट.
सो ईमेल अलर्ट से हम क्या करेंगे कि भाई किसको ईमेल भेजना है, वो स्टेप में हम उसको बताएंगे। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप में देन? ट्रिगरिंग, राइट। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? ट्रिगरिंग। सो ट्रिगरिंग मीन्स हमारे नॉर्मल इसमें व्हाट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट? clicking on the send button, but here triggering is has to be done automatically। यहाँ पे कोई send button प्रेस करने वाला है नहीं। so जैसे ही नया उसके लिए हमें एक रूल लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में क्या है, व्हाट इज इन अवर केस, कि भाई जैसे नया पेशेंट क्रिएट हो, जैसे नया पेशेंट रिसेप्शनिस्ट नया पेशेंट का डेटा एंटर करे और जैसे वो सेव बटन क्लिक करे, इन शॉर्ट न्यू पेशेंट का रिकॉर्ड बन रहा है ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन सम रूल्स, वर्कफ्लो रूल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। सो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 3 stages। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट वन this what I mean to say, email template। सेकंड वन इज व्हाट? ईमेल अलर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल अलर्ट इज नथिंग बट एक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कफ्लो एक्शन। ये किसके अंडर मिलेगा आपको? वर्कफ्लो एक्शन के अंदर। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? रूल मीन्स कौन सा रूल है ये? वर्कफ्लो रूल। दिस इज नोन एज व्हाट? वर्कफ्लो रूल। सो समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ईमेल कैसे भेज, ईमेल का थ्योरी समझ में आ गया? ईमेल कैसे ऑटोमेटिकली भेजना है, भेजते हैं। 3 स्टेप्स में उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले ईमेल का बॉडी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं? हम ईमेल टेम्पलेट से बनाएंगे। देन उसके बाद में कुछ हमें एक्शन देना पड़ेगा। एक्शन मीन्स कब वो फायर होने, मतलब किसको जाएगा। एंड थर्ड वन रूल लिखेंगे हम। रूल मीन्स व्हाट? कि कब फायर होने वाला है, राइट। सो सोनाली, शेयर योर स्क्रीन। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yeah. So first of all, you need to go, means like to go to the home screen of the Salesforce. What was the first step? To create the email template. So just go to the home page and search for email template or the classic email template inside a quick find box. So search for email template or classic email template. Email template. Yeah, here you can see students, classic email templates. You just need to click on this, click it. Yes. Now here you could see there are earlier email templates are available. Now ये email template हमने नहीं बनाया है, ये Salesforce ने खुद से बना के रखे। जैसे Salesforce की तरफ से आपको एक ऑटोमेटिक ईमेल आया रहेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। So that email was system generated और the Salesforce ने खुद से बना के रखे हैं, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। Now we have to develop our own email template. So just click on new. Here, choose the type of email Now once, template. yes, yes, हाँ, once you click on the new, then देखो अभी आपको अलग अलग तरह के ईमेल्स आते होंगे, राइट। एक तो एक सिर्फ टेक्स्ट वाला ईमेल आता रहेगा। एक दूसरा होता है HTML ईमेल, उसमें अच्छे से एकदम कोई फोटो वगैरह डाल के आते हैं, दैट इज नोन एज HTML। सो उसको, उसके लिए आपको HTML लैंग्वेज आना चाहिए। सो लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। So for time being, we will discuss about text email template. So just click on this. It is by default selected text. Just go to the next Yes. page now. Now here the next stage comes. Next page opens. Now here what we need to do, we need to give some first of all label.
यहाँ पे आपको कुछ लेबल दे दो ईमेल टेम्पलेट को। थोड़ा सा नीचे जाना, ये स्क्रीन थोड़ा, हाँ राइट, नो इट्स फाइन। You could give the label to your email template, right? You need to click, there is one checkbox available to use, Yes. right? After that, now देखो, अभी यहाँ पे दो कैटेगरी है that I will explain in very detail. One is static email and one is dynamic email. Now what is difference between static and dynamic? अगर मुझे सारे ही पेशेंट को एक सेम मेल भेजना है, सेम मेल, so that we will call it as a static mail. What we will say, dear patient, your appointment with our hospital is fixed, right? So please be available on the mentioned time. So उसमें टाइम बीम कुछ नहीं रहेगा, so सिर्फ एक प्लेन मेल रहेगा, उसमें बाकी कुछ चीजें नहीं रहेगी. That we will call it as a static email, right? But in case of, देखो, अगर पहला पेशेंट आता है मेरा रमेश, so what system should do, it should Ramesh पहला पेशेंट आता है रमेश, and Ramesh is taking appointment on 7th of July 2023, right? So Ramesh को मेल जाना चाहिए, dear Ramesh, with his name, not dear patient, right? Your appointment is fixed with our hospital, date 7th July to 2023. Second patient आता है, let's say some Kishore, then he said the system should drop a mail that dear Kishore, your appointment is fixed on 8th of July. मतलब वो email का template वो fix रहेगा, मगर उसके जो अंदर के values है वो change होते हैं. Changing means क्या होता है, डायनामिक होते हैं. Dynamic means what, moving. You might have aware that static and dynamic. Static means fixed. All the patient will have the same mail. The dear patient, there will not be any mail, any name of the patient, there will not be any date, or there will not be any particular things mentioned in that email related to that particular patient. Rather, all the patient will receive the same email. So we will not going to design a static email. We will be designing a dynamic email. हमें डायनामिक ही देना पड़ता है. हर पेशेंट के लिए उसका नाम जाना चाहिए अलग से, राइट? जैसे आपको अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको आपके नाम से मेल आता है. मैंने मेरे अकाउंट से अगर ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे नाम से मुझे मेल आएगा. मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो प्रोडक्ट आएगा, राइट? उसका कीमत आएगा, ना कि static mail आएगा. I will get a dynamic email. So here also we will design a dynamic email template. So first of all, in order to design a dynamic email template, हम क्या किसके ऊपर ये email बना रहे हैं? That we are designing this email on patient object. So go up, go up, ऊपर जाना, जरा scroll करना. Yes. हाँ. Now here, what is the first field there? फर्स्ट क्या Select है वो, field type. उसके ऊपर क्या Select है? field. हाँ, सो View सिलेक्ट sample. फील्ड टाइप, और उसमें से, हाँ, सबसे पहले वाला जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर क्लिक करो, ऊपर वाला ड्रॉप डाउन, हाँ, सिलेक्ट फील्ड टाइप वाला. Yes. हाँ, उसके अंदर होगा, देखो, पेशेंट, आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया रहेगा पेशेंट फील्ड रहेगा. It would have been alphabetically, Yes. so go down A, B, C, D. हाँ, so have we got that patient field? Yes. Yes. नाउ अभी आपको क्या चाहिए, पेशेंट का नाम चाहिए, है ना? आप पहले लिखोगे ना डियर, जो भी पेशेंट का नाम रहेगा. सो दूसरे इसमें दूसरा जो ड्रॉप डाउन है उसको क्लिक करो और
पेशेंट डॉट नेम कुछ करके फील्ड आया रहेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। पेशेंट के सारे Patient फील्ड्स name. यहाँ पे आएंगे देख। हाँ, सो क्लिक ऑन दैट पेशेंट नेम। Yes. सो देखो फर्स्ट ड्रॉप डाउन में व्हाट यू आर डूइंग, इन द फर्स्ट ड्रॉप डाउन यू आर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट कि कौन से ऑब्जेक्ट के फील्ड आपको डायनेमिकली चाहिए, एंड दूसरे ड्रॉप डाउन में उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से फील्ड्स अवेलेबल है वो सारे आएंगे। सो जस्ट उसके नीचे ये जो उसका ये आया रहेगा थर्ड, इसमें देखो ये जो सिलेक्टेड है ना, ये जो हाईलाइटेड ब्लू कलर में, वो उसका ये आ गया। वो आपको क्या करना है, सीधा एज इट इज कॉपी करना है, राइट? वो कॉपी करो सोनाली। Yes. हाँ, और उसको आप सब्जेक्ट में भी डालोगे, आप सब्जेक्ट में भी डालोगे, पेशेंट सब्जेक्ट में भी आपको पेशेंट का नाम आना चाहिए डायनामिकली, राइट? फॉर एग्जांपल रमेश योर अपॉइंटमेंट। सो जस्ट कॉपी दिस एंड गो टू द सब्जेक्ट टैब, पेस्ट इट, Yes. पेस्ट इट। आगे लिख दो अपॉइंटमेंट। तो उस फिर पहले इसमें आ जाएगा, पेशेंट का नाम आएगा ऑटोमेटिकली, एंड दूसरे उसके आगे लिख दो अपॉइंटमेंट विद अवर हॉस्पिटल। रमेश मतलब क्या आएगा, रमेश अपॉइंटमेंट विद अवर हॉस्पिटल। Yes. राइट। सो नेक्स्ट अभी ये वो सब्जेक्ट हो गया आपका, राइट? उसके नीचे वाला क्या है, बॉडी। तो नाउ कम टू द बॉडी। अभी आपको ईमेल के बॉडी में क्या क्या चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो पहले तो हम डालेंगे डियर, और पेशेंट का नाम जाना चाहिए, राइट? सो डियर, डियर आपने वो पहले वाला कॉपी करके ही रखा है, पेशेंट डॉट नेम वाला, Yes. पेस्ट रखो। हाँ, और कॉमा दे दो, कॉमा। सो आएगा वो क्या आएगा ऊपर, डियर रमेश, पेशेंट का जो भी नाम रहेगा। जस्ट एंटर नाउ, योर अपॉइंटमेंट, राइट डाउन योर अपॉइंटमेंट, और थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, योर अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट विथ आवर हॉस्पिटल is scheduled is scheduled on on अभी ना आपको यहाँ पे डेट डालना है, डेट, राइट? तो डेट के बारे में आपने कौन सा फील्ड लिया था सोनाली इसमें? Date of call. सिर्फ डेट ऑफ कॉल लिया था। Yes. तो वो डेट ऑफ कॉल, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा वहां पे, और एक फील्ड। सो जस्ट Mm, गो टू द just leave that page, we will do this once again. So just go to that object manager, and एक फील्ड देना, ऑब्जेक्ट मैनेजर, पेशेंट ऑब्जेक्ट पेज पर जाओ। एक Select डेट जिसे फील्ड, कहते हैं date और डेट yes. डेट देना, और उसको नाम देना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक फील्ड डाल रहे हैं, मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको हम डायनामिकली ले सके। पहले क्या था, सिर्फ डेट ऑफ कॉल था,
राइट। तो डेट ऑफ कॉल डालेंगे तो थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन होगा, तो अलग से एक फील्ड ही ले लिया हमने, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को ही हम डायनामिकली खींचेंगे हमारे ईमेल बॉडी में। Now again go to the email template, and again you can students, you can concentrate if you are having any confusion that how to create email template. So just go to the home tab, type email template, select classic email template, go to the new, we will be designing a new email template, text keep as it is, move to the next. Then here it is, we are once again at the same page. Just give name to the or select the field, patient name. Dear patient name, thanks for calling us. And your appointment with our hospital is scheduled on. And now scheduled on के बाद आपको वो फील्ड को लेना पड़ेगा। तो फील्ड के लिए लेने के लिए वापस से ऊपर के सेक्शन में जाओ, एंड वहां से वो फील्ड का नाम चूज करो। क्या नाम था? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। Yes. उसको सिंपली कॉपी करो, पेस्ट करो। राइट, फुल स्टॉप। नाउ यहाँ पे देखो, गौर करने वाली बात है, हम डायनामिकली कोई टेबल से वैल्यू खींच रहे। ये जो भी रिकॉर्ड पेशेंट का बनेगा उसको जाने वाला है ये ईमेल, राइट। सो ये उसका बॉडी हमने डायरेक्टली खींचा। अभी हमारे केस में अगर हमें किसी को का बिल भेजना है या डिलीवरी डेट भेजना है, तो उसके लिए भी सिस्टम में अलग अलग हमें क्या करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का डेटा खींचना पड़ेगा इसमें। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ से पेशेंट ऑब्जेक्ट का डेटा लिया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हो, डायनामिक, राइट। उसका बिल कितना हुआ, उसका डिलीवरी डेट क्या है, लाइकवाइज वो कितना भी बड़ा ईमेल हो सकता है उसमें। ये तो हमने सिर्फ दो फील्ड्स डायनामिकली लेके आ रहे, दैट इज पेशेंट नेम एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ फील्ड, वी कैन उसके आगे हमने डाल दिया एंड योर फीस इज, और फीस भी हम खींच के लेके आ सकते हो, फीस ऑलरेडी हमने डाली है, राइट। सो लाइकवाइज वी कैन हैव this dynamic fields available, right? So just save this email template. Yes. So email template is created now. ईमेल का बॉडी हमारा रेडी हो गया है। नाउ हमें हमें क्या करना है कि भाई वो किसको भेजना है। अभी ईमेल तो हो गया रेडी,
मगर किसको रेसिपेंट्स हमने अभी तक नहीं डाले हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गो टू द इसका नाम क्या डाला था हमने ईमेल टेम्पलेट का? व्हाट वाज द Test नेम? email template. टेस्ट ईमेल Test टेम्पलेट, email. राइट? Yes. Yes. हाँ. सो रिमेंबर दिस नेम. ओके, वी विल नीड दिस नेम इन फ्यूचर. सो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे? वो ईमेल किसको भेजना है? वी नीड टू हैव सम रेसिपेंट्स, राइट? सो रेसिपेंट्स के लिए मैंने क्या बोला था? ईमेल अलर्ट्स. नाउ जस्ट गो टू दिस क्विक फाइंड बॉक्स and search for email alerts. Email, Yes. click on that email alerts. कुछ नोटिफिकेशन देगा तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है सीधा. वो बोलता है क्या क्या स्टेजेस से. सो नीचे स्क्रॉल डाउन. Yes. सो हियर अभी तक कोई हमारा ये रेसिपेंट्स नहीं, मतलब हमने कोई भी एक्शन नहीं डिजाइन किया है. सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू ईमेल अलर्ट्स. ओके, सो गिव सम नेम. इसको आपने क्या ईमेल टेम्पलेट को क्या नाम दिया था? टेस्ट Test ईमेल email. टेम्पलेट. हाँ, तो यहाँ पे नाम दो टेस्ट ईमेल अलर्ट. नाम ऐसे ही रखना, क्योंकि जैसे आपने ईमेल टेम्पलेट का नाम दिया है, सेम नाम आप क्या देना? ईमेल अलर्ट का देना. सिर्फ उसको देना टेस्ट ईमेल टेम्पलेट नाम दोगे, और इसको नाम दोगे टेस्ट ईमेल अलर्ट. मतलब किसको कौन सा भेजना है, क्योंकि आप जब रियल टाइम में काम करोगे, कम से कम आपके सिस्टम में 200-400 ईमेल टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, 2-4 से अलर्ट्स बनाने पड़ेंगे, 200-400 ये बनते हैं. तो आपको पता होना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से ही होना चाहिए कि आपको समझना चाहिए ये अलर्ट्स आप किस किस ईमेल टेम्पलेट को देना है, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस इज अवेलेबल नाउ. यहाँ पे अगर आप देखोगे, उसके बीच में एक ईमेल टेम्पलेट करके एक टैब है, और उसके बाजू में एक छोटा सा सर्च का सिंबल है, राइट? लेंस है. तो वो सर्च के सिंबल पे आपको क्लिक करना है. First select the लेंस है ना वो. object. हाँ, फर्स्ट, और यू कैन फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. एंड विच इज दिस? कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे हैं? तो पेशेंट. सिलेक्ट पेशेंट ऑब्जेक्ट. Yes. आपने पेशेंट में ईमेल का फील्ड डाला है ना सोनाली? Yes. राइट, ओके देन. नाउ सर्च पे क्लिक करो. I think not. डॉक्टर में डाला है शायद. तो फिर आपको पेशेंट में एक ईमेल का फील्ड डालो पहले. ये छोड़ो फिर. Okay. इसको छोड़ो, इसको फिर से करते हैं. पेशेंट में एक ईमेल का फील्ड डालो. आपने डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट किया है? ईमेल ही सिलेक्ट किया ना? Yes. Yes. हाँ. हम कुछ नहीं, एक ईमेल का अपने पेशेंट ऑब्जेक्ट में एक ईमेल फील्ड ऐड कर रहे हैं. मतलब वहां पे वो ईमेल आईडी, रिसेप्शनिस्ट वो ईमेल आईडी हर एक पेशेंट का लेगी. अगर वो ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो किसको भेजना है वही नहीं पता चलेगा हमें, है ना? ओके, नाउ अगेन गो टू दैट ईमेल अलर्ट. अगेन क्लिक ऑन न्यू ईमेल अलर्ट.
give some name. Yes. Okay, select the patient object. Now select that field, select that email template. Okay, हमने जो email template बनाई है, सर्च के ऊपर क्लिक करो, another window will populate. इस विंडो में आपने जो भी डाला था ईमेल टेम्पलेट, उसका नाम ढूंढो। अगर नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ पे ऊपर मिला क्या? Yes. एक, हाँ, तो इसको सिलेक्ट करो। Okay, now your email template is appear over here, right? Now after that आपका ईमेल टेम्पलेट लग गया है। आपने उसको नाम भी दे दिया है, कौन से ऑब्जेक्ट पे देना है वो भी दे दिया, राइट? नाउ वो ईमेल भेजना किसे है वो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। नाउ ये जो यूजर दिख रहा है, क्या वो फील्ड का नाम क्या है? थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फील्ड? User. नो नो नो, यूजर का जो, Recipient है. जहाँ, हाँ, रेसिपेंट्स, राइट? सो इन केस ऑफ रेसिपेंट्स, राइट, व्हाट यू नीड टू डू, अभी आपको क्या करना है, उस ईमेल, जो जो भी पेशेंट का, जो भी रिसेप्शनिस्ट रहेगी, पेशेंट की डिटेल्स लेंगी, भाई आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल क्या है, आपका ईमेल 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 आईडी क्या है, तो वो बताएगा ईमेल आईडी आप मेरा ये है। तो वो ईमेल आईडी कहाँ पे से हो रहा है? ईमेल नाम के फील्ड में स्टोर हो रहा है। So instead of this user, email field आपको सिलेक्ट करना है। वो जो यूजर है ना, वहां पे उसको क्लिक करो, वो ड्रॉप डाउन पे, Yes. उसमें ईमेल फील्ड होगा कहीं पे तो। Yes. हाँ, सो सिलेक्ट दैट ईमेल फील्ड। Yes. हाँ, तो वो मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट में क्या आ रहा है अभी? वो जो पिक लिस्ट है मल्टी सिलेक्ट, नीचे नीचे। Email field patient email. हाँ, तो देखो वही, मतलब वो क्या बोल रहा है कि पेशेंट ईमेल में, जो पेशेंट ऑब्जेक्ट में जो ईमेल फील्ड है, उसको, ये रेसिपेंट जो है उसको जाना चाहिए, मतलब पेशेंट को जाना चाहिए, राइट? सो सिंपली इसीलिए हमने क्या किया था अभी, वो फील्ड ऐड की थी। अगर हमने ईमेल डेटा टाइप की फील्ड ही ऐड नहीं करेंगे तो सिस्टम को नहीं समझ में आएगा कि, क्योंकि अभी तक सिस्टम में पहले जो था उसमें हमने ईमेल की फील्ड ऐड नहीं की थी। सो पेशेंट में अगर ईमेल की फील्ड ही नहीं होगी तो हमने जो ईमेल फील्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन जो है मल्टी सिलेक्ट में, वहां पे नहीं आता है। सो जस्ट टेक दैट ईमेल फील्ड और उसको इस साइड में पुश कर देना, वो एरो से। Yes. Add. नाउ इससे हो गया। ओके, नाउ जस्ट सेव इट। योर ईमेल एक्शन इज रेडी, एक्शन इज अलर्ट इज रेडी। Yes. सेव इट। Yes. ओके, नाउ देखो अभी क्या क्या हो गया आपका। ईमेल लिख के हो गया, किसको भेजना है वो भी हो गया, और टेम्पलेट जो भी बॉडी है वो भी हमने इसको अलर्ट कर दिया। अभी भाई वो ट्रिगर करना है ना हमें, जैसे हम सेंड पे बटन क्लिक करते तब जाके वो जाता है ना, बट यहाँ पे सेंड पे जाके कोई मैन्युअली क्लिक नहीं करने वाला है, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लिक करने वाली है। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट डाउन सम रूल्स, राइट? So for that, again go to that quick find box in the home page Yes. and search for workflow rule. Search for workflow rule. Yes. So click on that workflow rule. So just continue here. वो एक मैसेज देगा कि क्या क्या स्टेप्स है, राइट? नाउ हियर आल्सो वी डोंट हैव एनी रूल, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी तक
ये नया सिस्टम है, इसमें कोई भी अभी तक रूल नहीं है। अगर कोई होते तो आप यहाँ पे देख पाते हैं, राइट। सो सो क्रिएट न्यू रूल, इसको कंटिन्यू विथ, उन्होंने एक नया एडवांस फीचर लॉन्च कर रहे हैं वो फ्लो करके, तो बोल रहे हो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको अगर ट्राई करना है, बट नाउ वी विल नॉट गो विद द फ्लो, वी विल गो विद वर्क फ्लो ओनली। सो जस्ट कंटिन्यू विद द वर्क फ्लो। सो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? पेशेंट ऑब्जेक्ट है। किसके ऊपर हम ये रूल बना रहे हैं कि भाई पेशेंट में नया पेशेंट क्रिएट हो, राइट, या फिर उसको अपडेट करे, वो टाइम पे ये फायर होना है, राइट। सो जस्ट सिलेक्ट पेशेंट ऑब्जेक्ट, गो टू नेक्स्ट। रूल हाँ, इसको कुछ रूल का नाम दे दो। टेस्ट ईमेल व्हाट रूल, टेस्ट ईमेल रूल लिख देना। ओके, इसके नीचे क्या है वो? इवोल्यूशन क्राइटेरिया। हाँ, सो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्रिएटेड, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम, सेकंड ऑप्शन। एवरी टाइम इट्स एडिटेड। नहीं नहीं, उसके ऊपर वाला सेकंड क्रिएटेड। ऑप्शन क्लिक कर। हाँ, ये क्रिएटेड एंड सेकेंड क्या है ऑफ वो? एवरी टाइम इट्स एडिटेड। सेकंड, हाँ यस। सेकंड, एंड दैट थर्ड वन वन। इज, हाँ, No, we have to select second one। जब भी वो क्रिएट हो और ये हो, क्या क्या बोलते हैं उसको हम, क्रिएट हो या फिर जैसे देखो आज पेशेंट आया, आज पेशेंट आने के बाद उसने अपॉइंटमेंट फिक्स किया 14 तारीख का, राइट। 14 तारीख को वो आने वाला है, बट उसने क्या किया, 12 तारीख को फिर से हॉस्पिटल में फोन करता है कि भाई मेरा 14 तारीख को आने को नहीं पॉसिबल होगा, प्लीज रीशेड्यूल इट। सो उस केस में रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी, फिर से वो बंदे के रिकॉर्ड पे जाएगी, राइट, उसका रिकॉर्ड अपडेट करेगी, राइट। सो ये क्या बोल रहा है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड। सो जब भी रिकॉर्ड क्रिएट हो तभी भी ईमेल जाना चाहिए, और जब भी अपडेट हो तभी भी ईमेल जाना चाहिए, राइट। सो हमने वो सेकेंड वाला ऑप्शन लिया है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ क्राइटेरिया कब जाना चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग आप रूल्स डाल सकते हो। तो रूल्स क्या है कि अलग अलग रूल डाल सकते हो, है ना। जैसे आपके हिसाब से आप रूल कोई भी डाल सकते हो कि भाई फीस इतनी हो। अगर आपने डाला है फीस अगर 1000 से ज्यादा हो तो ही ईमेल फायर होना चाहिए, अगर बंदे की फीस 800 रुपए तो ईमेल उसको मत भेजो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, राइट। यू कैन हैव एनी रूल। तो हम यहाँ पे एक रूल डालेंगे कि भाई ईमेल की जो फील्ड है, पेशेंट ऑब्जेक्ट में हमने एक फील्ड बनाई है, नेम ईमेल, वो जब ब्लैंक ना हो तब ये रूल फायर होना चाहिए। सो सिलेक्ट ईमेल फील्ड सोनाली हियर। हम बहुत सारे रूल्स डाल सकते हैं, बट अभी एटलीस्ट वन रूल तो डालना ही पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे आपको ईमेल फील्ड को सिलेक्ट करना है। यस। ओके, पेशेंट ईमेल फील्ड। और यहाँ पे ऑपरेटर से अलग अलग ऑपरेटर्स दिए गए हैं, यू कैन सिलेक्ट एनी वन। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू रहने देंगे, नॉट इक्वल टू कर दो। यस। हाँ, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, वो ब्लैंक ही छोड़ दो। मतलब जब ये रूल कब फायर होने वाला है, जब ईमेल की फील्ड ब्लैंक नहीं है तब ये रूल फायर होने वाला है, राइट। अगर पेशेंट की फील्ड ब्लैंक हुई तो वो ईमेल आईडी नहीं रहेगा ना उसके पास, किसको भेजना है वही नहीं रहेगा, तो फायर ईमेल जाएगा ही नहीं किसी को। तो हमने वही रूल डाल दिया है कि जब पेशेंट की ईमेल की फील्ड है वो ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू डाला है ना हमने, नहीं है, तो ये रूल को फायर करो। So just we have to prepare our rule also. So just click on save or next, whatever it may be, क्या है, सेव एंड नेक्स्ट। हाँ save and next, यस। done। और फाइनली उसको एक लास्ट स्टेप है, उसको एक्टिवेट करना है हमें। वहां पे देखो एक्टिवेट का बटन, सोनाली शो देम।
डन नहीं किया मैंने अभी तक। हाँ, डन हैव आई करो, डन? देन एक्टिवेट का बटन आएगा। यस, हियर इट इज। शो देम। हाँ, सो यू नीड टू एक्टिवेट दैट रूल। अगर आपको कल को लगा कि ये रूल मुझे को एक्टिव मतलब सिस्टम में रखना है, बट मुझे ईमेल का फैसिलिटी बंद करना है, सो जस्ट यू नीड टू डीएक्टिवेट इट, राइट? सो दिस इज एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। सो अभी हमें चाहिए वो रूल, सो यू नीड टू एक्टिवेट दैट रूल। यस। सो जस्ट एक्टिवेट इट। हैव यू एक्टिवेटेड? यस। हाँ। सो नाउ गो टू द पेशेंट। नाउ गो टू द एनी पेशेंट। Go to the patient object, sorry, that application. Yes. Go to the patient, create new patient. Now, student, anyone tell me your email ID. अभी हम यहाँ पे आपका email ID डालेंगे, हाँ? Tell me your email ID, anyone. आपको email आएगा अभी. Can you hear me, student? Yes, sir. हाँ, can you tell me your email ID? अरे भाई बोल रहे हो email ID? Lalit Chaudhary, Prabhakar. Lalit. Yes. आगे। CHOU CHOU। DHARY हम्म। 84596 84596। @gmail.com. एक बार email ठीक से check कर लेना और date of appointment डाल देना सोनाली कोई तो। यस, आज का ही डालो। ठीक है, whatever it may be. आपका ईमेल आईडी फिर से चेक कर लो। CHOUDH CHARY 84596 @gmail.com। Yes. सेव कर दिया? क्या हुआ? यस। Record save? यस। Now, Lalit, can you check your email? Yes, sir. Just a minute. एक बार रिफ्रेश करके देखना आपका ईमेल बॉक्स।
आ गया मेल ललित? कैन यू हियर अस ललित? नहीं सर, नहीं आया। आपका मेल ठीक से था? Okay, we will discuss this remaining part in the evening session. It has to be there. It will take some time otherwise. Sonali, you can stop the recording. Thank you, students. Yes, sir.